Chalya, you made an English version of it. The king of Bollywood, Shah Rukh Khan, retweeted it. It got 21 million views. Anurad's Runaway and it got viral. So what were the behind the scenes of this project? जो भी मिडिल क्लास से आते हैं लोग ये नहीं सोचते कि ओ मुझे आर्ट्स फॉलो करना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है. हाँ, मैं मोटी हूँ पर अगली हूँ, ये किसने कहा? Hi guys, I'm Advika. And I'm Akshaj. And we welcome you all to Two Sides of a Coin. Yay! Today we have a very talented personality with us. We have Vipasha Malhotra. Okay, now when I'll be introducing her, there are just so many things to say. The things that come in top of my head are that she's a musician, she's a writer, she's a comedian, and then she also has a massive following of around 500,000 followers on all सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एंड आज मेरे साथ है एक बहुत ही बढ़िया सिंगर, एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट क्रिएटर जिनके गाने आपने सुने ही होंगे, ना सुने हो तो भाई क्या रील स्क्रॉल करते हो मुझे नहीं पता. I'm Vipasha, a digital creator, musician and stand-up comedian. कोई रहती हूँ लहरों में तेरी याद आवा मुंडे bring all your colors on my sleeve. बाकी इस जहान से बातों से सवालों से. We are so glad and honored to have you with us today. Thank you so much for the amazing introduction जो कि हमने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था पहले से. बिल्कुल impromptu था. Yeah, but thank you so much for having me on Two Sides of a Coin. I'm really excited to start this chat with you guys. I'm also excited to actually know you because I think I know very less of your behind the scenes and of your journey, and so today I'm really excited to know more about your journey and how you reached here. Yeah, I think I'm most excited to know about your musical part. Yeah. So what was your musical journey? How did you get into music? वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं कि एक रात को मुझे सपना आया कि तथास्तु संगीत ही तुम्हारी जिंदगी है, तो ऐसा तो नहीं हुआ. पर I've grown up in such an environment where cassettes का बहुत ज़्यादा fashion था. There was a lot of CDs playing at my home and Bollywood movies के बहुत सारे cassettes, और बहुत शौक था मेरे पेरेंट्स को गाने सुनने का, गज़ल्स, बॉलीवुड. तो एक एनवायरनमेंट आपको शेप करती है एंड बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर रियली गुड सिंगर्स, तो उनको शौक भी था बट दे कुडंट परस्यू इट. तो आई थिंक दैट्स वेयर आई काइंड ऑफ गॉट इट फ्रॉम. वन मेजर इंसिडेंट दैट शेप्ड my musical journey and that impacted me the most was I was in second standard or something, और मेरी जैसे क्लास असेंबली होती है ना, मैम असाइन करती हैं कि हर क्लास की आज इस क्लास की असेंबली है, तो उस तरीके से हमारे क्लास का टर्न था. एंड मेरी क्लास टीचर मैम ने मुझे बोला था कि you have to prepare this song. She had given me a song and it was a kind of a complicated song. It was called सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले. This is from the movie परछाई. तो ये उस जमाने में भी पुरानी मूवी थी. तो मेरी मम्मा तो मतलब she's a perfectionist, she's a control freak. Okay. तो उन्होंने we searched everywhere to find that particular cassette, और उन्होंने मुझे पूरा लिरिक्स लिख के एंड ऑलमोस्ट 2 हफ्ते प्रैक्टिस करा, बिकॉज उसमें सरगम है और बहुत अलग अलग तरीकों से वो सरगम प्रेजेंटेड है. तो वो मैंने तैयार करा, और आई थिंक उस टाइम पे कोई स्टेज फ्राइट का कॉन्सेप्ट नहीं था. मुझे बस था कि हाँ मुझे काम दिया गया है, मुझे जाके करना है. इट वॉज एज सिंपल एज दैट. तो मैं गई स्टेज पे, मैंने गा दिया वो और फिर मैं उतर आई एंड वी वेंट बैक टू आवर क्लास एंड सडनली माई प्रिंसिपल मैम comes to the classroom door and we knew that she wasn't there in the assembly. वो अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी, बट उनके ऑफिस में एक स्पीकर चलता है जिससे उनको पता चलता है कि what all is going on हाँ स्टेज पे. तो suddenly she asked कि who's Vipasha, where is Vipasha. तो मैं ऐसे हो गई कि मैंने क्या कर दिया. I hope I didn't do something wrong because that's the first thought as a student that you have अगर कोई आपका नाम पूछता है. प्रिंसिपल आपका नाम. थोड़ी शैतान तो हुई मैम से. तो फिर the class teacher pointed at me and I stood up and she gave me a whole gift. एक scale set था, उसमें pencil, pen, eraser and sharpener and stuff like that. So it she kind of applauded me in front of the whole classroom, and that was like a major
मोमेंट फॉर मी कि ओ माय गॉड. Was it also like जब आपके घर पे गेस्ट आते थे तो ये जैसे मेरे फैमिली show. इनके सामने जरा गा दो तो आपके घर पे आप तो खुद ही खुशी खुशी गाते होगे कि हाँ मैं तो मुझे चुटकुले सुनाने का बहुत शौक था. मैंने 2-3 संता बनता के या ऐसे आलतू फालतू के चुटकुले रखे थे. एक तो आप अभी भी सुना दो फिर ऐसा करो. तो आलतू फालतू के चुटकुले सुनाती थी, नहीं तो गाना सुनाती थी. तो या लाइक आपने स्कूल में ही डिसाइड कर लिया था कि आपको म्यूजिशियन बनना है, या फिर व्हाट वर यू थिंकिंग लाइक 10th और 11th स्टैंडर्ड? यार ये तो कोई नहीं सोचता कि आई थिंक आई मीन जो भी मिडिल क्लास से आते हैं लोग, ये नहीं सोचते कि ओ मुझे आर्ट्स फॉलो करना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है. पर वो जो एक इमेज थी ना ऑफ लाइक डूइंग अ जॉब और बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, वो चीज इट डिडंट सिट वेल विद मी. लाइक मुझे लगा कि नहीं यार, किसी को तो मुझे डिस्कवर करना चाहिए. कोई मेरे साथ भी वो आशिकी वाला सीन हो जाए कि कोई डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर आके मुझे यू नो ढूंढ निकाले क्राउड में से कि ओ यू हैव सच अ वंडरफुल हिडन टैलेंट और दुनिया के सामने लाके रख दे. तो अंदर ही अंदर आई बिलीव इन मैजिक. मतलब हमेशा से लाइक आई लव हैरी पॉटर, आई लव ऑल लाइक मैजिकल कंटेंट जो भी होता है. तो मुझे एक अंदर से ही एक अजीब सा एक वो था कि कुछ तो होना चाहिए मेरे साथ डिफरेंट. एंड वो हुआ नहीं, वो मैंने ही किया. बट या दैट थिंग डिडंट सिट वेल विद मी कि मैं कॉर्पोरेट करूंगी ये वो. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि आई विल बी इन समथिंग आर्टिस्टिक. मतलब मेरा फर्स्ट गोल था टू बी अ फैशन डिजाइनर. देन आई वांटेड टू डू आर्कियोलॉजी क्योंकि मुझे हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्ट था. बट म्यूजिक से आई यूज्ड टू शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग म्यूजिक एज अ करियर पाथ बिकॉज मुझे पता था कि कितना सिवियर कंपटीशन है एंड इतने सारे सिंगर्स हैं. इंडियन आइडल पे, सारेगामापा पे हम देखते हैं कि कितने अमेजिंग सिंगर्स आते हैं और मतलब मुझे डर लगता था कि मैं कैसे इन लोगों से कम्पीट करूंगी. बट देन द होल सीन चेंज्ड एंड देन ये चीज़ बहुत अच्छी हुई विद सोशल मीडिया कि नाउ एवरीवन हैज अ स्पेस. लाइक यू डोंट नीड टू कम्पीट विद एनीवन एंड यू डोंट नीड टू मतलब सबकी तरह सेम क्लासिकल ही नहीं गाना है सबने और सेम उतने ही ज़्यादा मुर्खियाँ और उतने ही ज़्यादा सुर और उतने ही ज़्यादा सीरियस गाने नहीं गाने हैं. When did you actually start like ऐसे प्रोफेशनली? आप कितने साल के थे जब आपने क्लासेस ली थी, म्यूजिकल क्लासेस? यार मेरे को ना हमेशा से ही कुछ डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स हैं. मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ और फिर मुझे उसका मन नहीं करता है. तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत बार ट्राई करा कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल. सो शी मेड मी जॉइन ऑल दीज क्लासेस बट एवरी टाइम विद इन 1 month or 2 months I would not be interested. Run away. Exactly. So बचपन में ऐसा था. फिर जब अभी रिसेंट में मेरे को लगा कि नहीं यार, now that I am into being a singer songwriter and music के अराउंड कंटेंट भी बना रही हूँ तो it's better. एक वो होता है peers के सामने यू नीड टू काइंड ऑफ प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वे, ऐसा आप नौसिखिया की तरह नहीं जा सकते हो. तो वो चीज़ ने मुझे पुश करा एंड आई वाज लाइक नो विपाशा, इट्स टाइम टू बी सीरियस नाउ यू आर नॉट अ किड एनीमोर एंड मम्मा तुमको हर जगह ले के घूमती नहीं रहेंगी. तो या सो आई जॉइंड गंधर्व महाविद्यालय एंड आई लर्नड क्लासिकल म्यूजिक देयर फॉर 3 years. ओके, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी? इसी के साथ था कि लाइक व्हाट वर यू थिंकिंग कि व्हाट इज योर कंटेंट गोइंग टू बी लाइक व्हेन यू वाज गोइंग टू स्टार्ट इट? उस टाइम क्या था? मैंने बहुत ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया. इट वॉज बैक इन 2012 व्हेन आई क्रिएटेड माई यूट्यूब चैनल. मैं तब देख रही थी, आई सॉ दिस गर्ल श्रद्धा शर्मा. उसने वो अपने बॉयफ्रेंड को डेडिकेट करके कुछ गाने नहीं गाए थे कि दिस इज डेडिकेटेड फॉर someone special. ऐसा करके उसने इंट्रो दिया and then she sang हाले दिल and she went really viral. And I used to follow Lily Singh also. Justin Bieber की स्टोरी भी मैंने बहुत फॉलो करी थी. तो I think the goal or the hope with which I started content creation या जिस तरीके से मैंने अपना पहला वीडियो डाला वो ये था कि मैं अपना वीडियो डालूंगी, मैं सो जाऊंगी, अगले दिन उठूंगी, उस पे 1 million व्यूज होंगे और मेरे घर के सामने लोग नारे लगा रहे होंगे कि हमारा क्रिएटर कैसा हो, विपाशा मल्होत्रा जैसा हो. तो मैंने तो यही सोचा था. तो ये जो सब सोचते हैं वैसे कि यही होगा उनके साथ पहला वीडियो डालने पे. और ऐसे ही करके मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था 2012 में. What was it about? It was a song cover of One Direction. Yeah. Another World नाम का एक उनका सॉन्ग था. थोड़ा सा अंडररेटेड सॉन्ग था उनकी एल्बम का. तो मैंने उसका कवर डाला था एंड देन आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स मैं उससे इतनी एम्बैरस हो गई कि मैंने उसका खुद ही डिलीट कर दिया. बट अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों किया, यू नो, बिकॉज वो बहुत एक कोर मेमोरी
था वो. तो what do you think, how did the content evolve over time? Like आपने starting करी थी covers से, right? And now you also tried skits and stuff like that. तो वो कैसे evolve करा? So I'm that kind of person जो एक बूफे पे जाता है तो वो हर चीज ट्राई करता है. तो मेरे को हमेशा से हर एक चीज ट्राई करने की चुल थी. एंड आई हैड दिस क्रेजी पैशन फॉर सोशल मीडिया, जिसको मैं पैशन कहूँ या मे बी आई कैन जस्ट कॉल इट अ सोशल मीडिया एडिक्शन, जो कि डिस्टर्बिंग है. पर या आई हैड दिस सोशल मीडिया एडिक्शन एंड आई वांटेड टू लर्न एवरीथिंग न्यू एंड ग्रो इन एवरी वे पॉसिबल. तो जो भी मेरे नीश में या मेरे जॉनरा में जो भी चीज़ें मैं कवर कर सकती थी, I had this like craze to try everything, and that's how comedy started for me. Okay. I was in college और मेरे कुछ classmates, they were comedians, they were trying out going to open mics. तो उनके मैं अटेंड करने गई पहले, तो मैंने देखा कि वो क्या करते हैं. That's how I started with my stand-up comedy thing. और फिर जब मुझे लगा कि लाइक स्टैंड अप वाज गोइंग ग्रेट, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ना इतनी अच्छी सिंगर हूँ एंड एवरीवन कीप्स टेलिंग मी कि वो अपनी म्यूजिकल साइड को भी दबाओ नहीं, बाहर लेके आओ. तो मुझे लगा दैट्स व्हाई आई शुड मर्ज म्यूजिक एंड कॉमेडी एंड ट्राई समथिंग लाइक म्यूजिकल कॉमेडी. तो मैंने कुछ ऐसे फनी सॉन्ग्स भी बनाए जो मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी. और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको रिकग्निशन मिलता गया, तो धीरे धीरे मेरा कॉन्टेंट का जर्नी लाइक स्टार्ट होता गया. लाइक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं क्रिएटर थी हमेशा से. 2012 से मैं आई एम नॉट लाइक अ क्रिएटर, बट ऐसा होता था कि कोई मुझे आइडिया आता था तो मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल देती थी. एंड देन योर सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस, जैसे आप जब सॉन्ग लिखते हो तो it's not just a cover, you add a very fun twist to it, जो कि उसको बिल्कुल it makes it more captivating, more interesting to watch, because उसमें there's a flair of you, there's a hint, like a twist of Vipasha, we can say. Thank you. For example, the best thing is जैसे कि you might just translate the song, या फिर what if this song was written from this point of view, what if this, so what's that journey like, what's the songwriting process? It's different for originals as compared to the translations and the versions that I create. पर originals के बारे में मैं ये कहूँगी कि आई एम अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा रोती है, मतलब बहुत ज़्यादा फील करती है. और नहीं, सैड नहीं, बहुत रोती हूँ यार मैं. मतलब आई क्रेव अबाउट एवरीथिंग. आई एम अ वेरी वाइनी पर्सन एंड लाइक कुछ हुआ मेरे साथ, मुझे 10 लोगों को बताना है कि आज पता है ये हुआ, आज रिक्शे वाले ने मुझे ले जाने से मना कर दिया. तो मेरे साथ और बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी होती रहती हैं. तो इसीलिए समवन टोल्ड मी कि ये जो फीलिंग्स है इनको तू लोगों को रैंट करने से अच्छा व्हाई डोंट यू चैनलाइज इट इन योर आर्ट. सो आई वाज लाइक हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, तो मैंने सोचा ही नहीं. तो दैट्स हाउ लाइक आई स्टार्टेड writing, and I mean that's how my originals wala journey started. And talking about the covers that I do, so I always used to sing the song as it is, maybe acoustic version or like a different a keyboard version or something like that. पर फिर मुझे लगा कि well, social media, everyone is doing something unique, you need a standout quality. Also, like I think the first version that I created, like Punjabi version of it was Positions by Ariana Grande. And मैं Ariana Grande को बहुत follow कर रही थी उस time पे, and I was like यार she would look interesting as a Punjabi, मतलब इसके जो behaviors है वो एक पंजाबी girl के जैसे है कि she's very hoity toity and उस तरीके से. तो मैंने वही सोचा कि what if like ये Positions इसने पंजाबी में गाया होता. And then I collaborated with a friend, उसने मुझे लिखने में help किया क्योंकि मुझे पंजाबी उतना राइटिंग के तौर पे आती नहीं है. सो माई फ्रेंड हेल्प मी, सो दैट मेड इट एन इवन मोर फन प्रोसेस. दैट्स व्हेन आई sang it, and yeah, so that's what started my journey with these versions and translations. And फिर मुझे लगा कि अब ऐसा हो गया है कि अब अगर मैं नॉर्मल कवर गाती हूँ तो मुझे लगता है मज़ा नहीं आ रहा है यार. कुछ तो करना चाहिए. So that's how. The translation covers, how do you find कि किस गाने का translation करना है? Like आपको इंस्पो कहाँ से मिलती है? Well, if a song is really touching me or if it connects with me, like even talking about that Runaway Hindi version, तो उस टाइम पे बहुत एक डार्क टाइम चल रहा था, पैंडेमिक था, सब घर में थे और मम्मियों के सामने आप ज़्यादा टाइम बिता दो तो कलेश ही करती. तो इसलिए सारे बच्चे सॉर्ट ऑफ परेशान थे, अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, इट वाज अ वेरी सीरियस टाइम. और सभी लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, घर में बर्तन धोने पड़ रहे थे यार. तो वो सॉन्ग मुझे बहुत
रिलेटेबल लगा हमारी सिचुएशन से. अभी मैंने सोचा कि अगर इंडियंस को ये सॉन्ग प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ वही 10% इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल है, एंड आई हैड माई ओन टेक अबाउट इट कि यू नो we all want to like run away from this pandemic, we want to run out of our houses for a little bit. So that's how I kind of wrote that, and it really like touched a chord with a lot of people. And then this actress Mrunal Thakur, she messaged me saying कि इसका फुल वर्जन निकालो, ये मुझे सुनना है. तो आई वाज लाइक यार एक्ट्रेस बोल रही है, मैं कैसे नहीं कर सकती. एंड शी इज सच एन अमेजिंग यू नो पर्सनैलिटी. तो दैट्स व्हाट रियली पुश्ड मी टू क्रिएट अ फुल वर्जन. बट फुल वर्जन से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, सही बताऊँ तो, कि ये बिल्कुल भी कहीं भी इसके व्यूज़ आएंगे या कुछ होगा. बट आई वॉज surprised by the response that it gave. So out of all these amazing projects that you've done, which one is your personally favorite वाला? अभी जो latest जो किया है चलिया. चलिया, and originals में खुद में खूबसूरत, it's this song about self love and self acceptance. तो the lyrics go like, क्यों छुपाऊं मैं खुद को, अब जानती हूँ कि अलग हूँ तुम्हारी नजरों में नहीं, पर खुद की नजरों में खूबसूरत हूँ. Oh my god. ये like सबसे ज़्यादा you know interesting episode है. तो वही मेरे को बहुत ज़्यादा I love the message of that song, तो इसीलिए that's my top favorite. And second number पे there's this collaboration that I did with this Pakistani content creator / singer-songwriter Ansar. You might have seen his reels. He does a lot of comedy reels and he was really viral on TikTok जब तक टिकटॉक था इंडिया में. तो आपने देखा होगा उसको, अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. तो ही वाज हिलेरियस एंड मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उसके साथ कोलैबोरेट करने का चांस मिलेगा. बट ही ऐसी हमारी बात होनी स्टार्ट हुई एंड या ही सजेस्टेड कि लेट्स कोलैबोरेट एंड आई वाज लाइक ऑब्वियसली. तो या और उस सॉन्ग का थीम था लॉन्ग डिस्टेंस लवर्स एंड यू नो हाउ यू काइंड ऑफ ग्रो आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड टॉक्सिक स्टफ. तो हम दोनों ने अपना पर्सपेक्टिव डाला उस चीज़ के बारे में एंड इट्स लाइक अ फ्यूजन रैप ट्रैक. तो दैट्स व्हाट मेक्स इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी. द सॉन्ग इज कॉल्ड स्टक इन द पास्ट. यू कैन स्ट्रीम इट. You just mentioned Aurora's Runaway and it got viral. So what were the behind the scenes of this project? जो रील थी, आई न्यू दैट हाँ ये कुछ तो होगा, बट इट गॉट 21 मिलियन व्यूज. दैट इज लाइक, अब उस चीज को रेप्लिकेट करना इज सो डिफिकल्ट. आई मीन यूजुअली आपने देखा होगा इंस्टा पे अ लॉट ऑफ लाइक रैंडम स्टफ goes Get viral blows, yeah. and Blows up. that was like थोड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो कंटेंट एक तरीके से. तो that was unexpected for me कि you know this would blow up at such a level. और उसके बाद फिर जब फुल वर्जन निकाला तो उस पे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिकॉज मुझे लगा कि यार होगी इतनी मुश्किल से सुनते हैं लोग, पूरा गाना कौन सुनेगा बैठ के. बट उस पे भी यू नो काफ़ी एंगेजमेंट आया, काफ़ी रीच आया. एंड talking about the Aurora How chat. did it happen? Like आपने reach out किया था या their team reached out, क्या हुआ क्या था? So Universal Music represents Aurora, शायद इंडिया में, या मैं श्योर नहीं हूँ उसके technicalities के बारे में. But Universal Music is in some way in a collaboration with Aurora in India. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू. एक्चुअली नो, आई टेल यू, आई रीच्ड आउट टू देम सेइंग कि लेट्स रिलीज द सॉन्ग टुगेदर. क्योंकि मैंने कहा कि हाँ अगर लेबल का टैग लग जाएगा तो इट विल रीच इवन मोर पीपल. बट आई डिडंट गेट अ रिवर्ट ऑन दैट. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रैंडमली ऐसे रिप्लाई किया कुछ टाइम बाद, और उसमें था कि वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू, लेट्स गेट ऑन अ कॉल टू डिस्कस दिस. और फिर अगले दिन मुझे कॉल आता है एंड इट्स लाइक कि आपका कल इंटरव्यू ऑरोरा के साथ. एंड थैंक गॉड कि मतलब वो एक ही दिन के स्पैन में था, नहीं तो अगर थोड़ा टाइम होता तो मैं तो ओवर थिंक करके वहाँ पे बकवास ही करते थे कुछ ना कुछ. मैं बोल ही नहीं पाती ऑरोरा के सामने, मुझे कुछ टाइम नहीं मिला प्रोसेस करने के लिए. सो इसीलिए इतना नेचुरली वो कॉन्वर्सेशन फ्लो हो पाई. सो एंड शी इज सच अ लाइक, मैं तो हर जगह उनको टैग कराई कि शी इज एन एंजल, शी इज अ फेरी. तो लिटरली इतनी ज़्यादा ऐसे लगता है कि टिंकर बेल की तरह अपनी पिक्सी डस्ट गिराते हुए चलती है वो हर जगह. इवन इन द इंटरव्यू आई फील लाइक मोर देन मी पीपल आर लुकिंग एट हर. ऑब्वियसली शी डिजर्व्स दैट. बट या दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू
get to talk to her. अभी आपका एक और वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल जा चुका है, टचवर्ड, which is चलिया. You made an English version of it and then the king of Bollywood, Shahrukh Khan, retweeted it. Like, how were you feeling जब आपको पता चला? Like, how did you get to know पहली बात तो, and then what were you doing? Dude, you shouldn't ask me मैं उस टाइम कर क्या रही थी. I was literally on my toilet seat. I'm not even kidding. I was literally on my toilet seat when I saw that tweet. So someone commented on my reel saying कि SRK retweeted your version, और उसी टाइम पे किसी और लड़की का भी SRK ने कुछ शेयर करा था. तो मुझे लगा कि इसको गलतफहमी हुई होगी, ये किसी और की बात कर रहा होगा, किसी और का देख लिया एंड इट मस्ट बी समवन एल्स. पर मैंने कहा चलो फिर भी एक बार चेक करने के लिए लेट मी जस्ट सी, और इट टर्न्ड आउट टू बी लिटरली दैट. ओ माय गॉड. वैसे आप शाहरुख खान के फैन थे मतलब पहले से? Yeah, obviously यार, who doesn't love SRK. I am a big fan of SRK and वो चीज़ एकदम it came full circle in आपने some way. सोचा था कि this song would go there when you were making the English version of No it? यार, obviously not. Like getting shared by SRK was not something I expected. और मतलब जैसे होता है ना कि आप को चाहते हो कि देख ले, आप उसको टैग करते हो हर जगह, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था. बट टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन दैट आई हैड द फर्स्ट टाइम आई सॉ, तो मुझे गुस्सा आया क्योंकि किसी और ने मेरा वीडियो अपलोड कर रखा था. आई एम लाइक यार क्रेडिट्स गए, नोबडी वुड रिकॉग्नाइज दैट इट्स मी. पर फिर मुझे लगा कि नहीं यार, SRK ने मेरी शक्ल देख ली है एंड ही इज रिटन Complimented also. like I like this very much. much. Thank you. Yeah. Awesome. ये सब लिख रखा था, रट गया मुझे उनका comment. You also shot a music video for that, right? तो उसके Full what's version the procedure behind that? So usually जैसे मेरे को रात के बीच में middle of the night idea आते हैं and I feel like कि मुझे इसको तो कल ही शूट करना है. तो बहुत सारे वीडियोग्राफर्स मुझसे पिस्ड हैं क्योंकि मैं उनको 12 बजे अप्रोच करती हूँ, बोलती हूँ कल अवेलेबल हो तुम, एंड मोस्टली नहीं होते हैं. सो आई मोस्टली डू अ लॉट ऑफ सेल्फ शूट्स एंड आस्क माई फ्रेंड्स टू अकम्पनी मी और हेल्प मी आउट विद द शूट. बट दिस टाइम अराउंड जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार शाहरुख ने शेयर करा है, तो मुझे भी आई कैन वेट इट आउट एंड मुझे कल ही अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है. तो आई अप्रोच्ड अ वीडियोग्राफर whose portfolio I liked finally. तो जब वो चीज़ shortlist हुई and then I was looking forward to the date of the shoot, but I was also, there was a weird nervousness in the air because I've never met that guy, and as women especially it gets really awkward because you don't know how the other person is in behavior and how he's seeing you. तो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए था कि वो शिट उसके साथ आइस ब्रेक करनी पड़ेगी एंड चीज़ें नॉर्मल करनी पड़ेगी, और वैसे ही यू शूटिंग इन पब्लिक सो इट्स अ लॉट ऑफ लाइक प्रेशर. तो या सो लकीली उस टाइम पे मेरे 2 फ्रेंड्स ने अग्री कर लिया मुझे अकम्पनी करने के लिए, सो आइस तो ब्रेक हो गई. बट what were the public's reaction? वो कैसा था? यार इट्स very embarrassing to shoot in public and especially doing the dance. And चलो रोड पे जब तक मैं रोड पे थी तब तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि पीपल आर गोइंग अबाउट द बिजनेस, मतलब ताड़ रहे हैं बट ताड़ते ताड़ते जा रहे हैं. बट पार्क में तो लोग वेलाबंदी करने ही आते, टहलने ही आते हैं, देखने ही आते हैं. या तो मतलब वो लोग ऐसे करते करते धीरे धीरे अपना टाइम ले लेके जा रहे हैं. एंड मुझे इतना ज्यादा जोकर जैसा फील हो रहा था सबके सामने. आई वाज लिटरली फीलिंग लाइक अ बफून. एंड उसी टाइम पे जब वो देख रहे तभी मेरा स्टेप भी गलत हो रहा है, तो वो एम्बेरसमेंट खत्म ही नहीं हो रही. मतलब इट इज टेकिंग मोर एंड मोर टाइम एंड आई एम गेटिंग. तो इसीलिए कॉन्फिडेंस होना बेटर है कि बस एक बार में करके दे दो तो यू वोंट हैव टू गो थ्रू दैट एम्बेरसमेंट अगेन एंड अगेन. ठीक है. ऑल्सो जैसे कि अब किसी को अब स्टार्ट करना है अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी यूट्यूब या फिर इंस्टा पे, तो आप उनको क्या एडवाइस या टिप्स दोगे सो दैट दे कैन ऑल्सो ग्रो? तो मैं कहूँगी कि मत करो यार, क्यों करना है, हमारा काम धंधा मत छीनो. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन, बट या समटाइम्स पीपल गेट ल्योर्ड अगर उनका एक रैंडम वीडियो वायरल चला जाता है या फिर दूसरों की ग्रोथ देख के कि यार इन्फ्लुएंसर्स तो इतना कमा रहे हैं, बट लेट मी बी वेरी रियल, सब लोग इतना नहीं कमा रहे हैं. एंड देर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स विद दिस करियर लाइन एज वेल बिकॉज इट्स वेरी न्यू. सो इवन वी डोंट नो कि क्या होने वाला है फ्यूचर में. जैसे टिकटॉक बैन हो गया है अब्रप्टली, इंस्टा में आए दिन इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में यूट्यूब यूज्ड टू बी completely focused on long form videos and suddenly they just started manufacturing shorts and थोड़ा सा
random type of content, and everyone wants to be a celebrity, everyone wants to be a star of their own life. So just be sure कि आप एक skill, एक चीज कुछ of what thing you are Something providing of to your value. audience. Like if you have कंसिस्टेंसी, आप रोज वीडियोस बना पा रहे हो, यू आर अ गुड वीडियोग्राफर, यू आर ऑफरिंग देम दैट वीडियोग्राफी एस्पेक्ट, तो वो करो. इफ़ यू हैव अ वेरी एक्साइटिंग लाइफ, डेली लाइफ बहुत एक्साइटिंग है तो व्लॉग्स बनाओ. इफ़ यू हैव अ क्रेजी लाइफ और समथिंग लाइक दैट, इफ़ यू हैव सम टैलेंट दैट यू रियली वांट टू शोकेस, दैट यू नो और मे बी यू हैव सम नॉलेज दैट यू वांट टू इम्पार्ट, तो मेक श्योर दैट देयर इज वन स्किल ऑफ योर्स दैट यू वांट टू शेयर विद योर ऑडियंस. इट कुड बी डांस, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी पेंटिंग. सो मेक श्योर व्हाट दैट थिंग इज. ये नहीं कि मतलब बस मैं जैसी हूँ लोग मुझे पसंद करें और मैं बस अपनी पर्सनालिटी दिखाऊं. उसमें भी यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. I think that's a very good advice, because when people start, उनका यही होता है कि मैं अपनी लाइफ दिखाऊंगी और लोगों को मैं पसंद आऊंगी. Yeah. And that's not how it is. Like not everyone is able Exactly. to grow with their own personality. You have to offer something. जैसे आपने music offer किया, Yeah. someone Something will yeah. कोई या फिर value offer करेगा. consistency in that Consistency, yeah. content. Yeah, like even आप vlogs कर रहे हो तो कोशिश कर, डेली व्लॉग्स कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करो. नहीं तो इट शुड बी कंसिस्टेंट ऑफ कोर्स, कि आपसे लोग जुड़े हुए हैं तो वो रोज़ देखना चाह रहे हैं फिर कि आप क्या करते हो. भले ही आप बस उठ रहे हो, पानी पी रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, मम्मी पापा से मिल रहे हो, बेसिक चीज़ें भी करो तो भी देन मेक श्योर कि आप उसमें कुछ प्रोवाइड कर रहे हो. या तो कुछ डिफरेंट शूटिंग स्टाइल, एडिटिंग स्टाइल और कंसिस्टेंसी. डेली में डालूंगा, something like that. Okay, so you also have one video जो कि viral हुआ था, where it was very relatable actually, because आपने उसको अपने way में, there's this song which you sang, हाँ मैं मोटी हूँ पर अगली हूँ ये किसने कहा. Like that song stood out to so many girls who have been body shamed or something like that. Also portrays कि how advocate you are for topics like body shaming or body positivity or mental health. तो ये song जो आपने बनाया था, what was the motive behind this, या what were you actually going for, what was the inspiration? क्या ये hate comments थे या what? I'm a very like sassy person, and कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आपको कोई चीज़ सुना देता है और आपको तब कम बैक नहीं आता, फिर घर में आप नहा रहे होते हो या बाथरूम में होते हैं, सडनली लाइक ये मिल जाए ना तो ये बोलना चाहिए था, ये क्यों नहीं बोल पाई विपाशा. तो ऐसे ही मुझे ये लिरिक्स आए थे एंड आई वाज लाइक आई शुड पोस्ट देम ऑनलाइन. बट मुझे पता था कि आई विल गेट ट्रोल्ड फॉर दिस, बिकॉज उसमें क्लियरली मैं बोल रही हूँ हाँ मैं मोटी हूँ पर अगली हूँ किसने कहा, एंड पीपल विल बी लाइक ओ मैंने कहा मुझे ही दिख रहा था वो चीज़. बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सोशल मीडिया की ऑडियंस इतनी अनओरिजिनल होगी कि वो मैंने कहा तो चलता ही क्या वो मैंने कहा. मतलब ये नहीं कि एक बंदे ने मैंने कहा, पता नहीं कितने सारे लोगों ने मैंने कहा. बट द मोस्ट फन पार्ट ऑफ कई क्रिएटर्स ने, बकवास क्रिएटर्स ने, डैंक मीमर्स ने मेरे को ट्रोल किया उस पर. मतलब दे पिक्ड अप माई वीडियो एंड दे मेड देयर ओन वीडियो ऑन टॉप ऑफ इट कि मैंने कहा और समथिंग लाइक दैट. तो उसमें जो लोग मेरे को ट्रोल कर रहे थे उनकी सोचो डैंक मीमर्स वाली ऑडियंस है पूरी की पूरी, और सब लोग कमेंट्स में मुझे बेइज्जती कर रहे हैं, राइट. बट उसमें भी मेरी तारीफ हो रही थी कुछ कमेंट्स में, तो वो मेरे लिए बहुत ही अपलिफ्टिंग था कि ब्रो बट किसी ने लिखा था इसीलिए तेरी बंदियां नहीं पटती है क्योंकि तू ऐसे बेइज्जती मारता रहता है सुंदर लड़कियों की और समथिंग. और फिर किसी ने कहा ब्रो बट शी इज प्रिटी, लेट्स बी रियल और ऐसे. तो वो मुझे बहुत ही वैलिडेटिंग लगा कि मतलब हेट वाले पेज पे भी मेरी तारीफ हो रही है. मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया उस चीज को, इंस्टेड ऑफ लाइक लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. बट द मोस्ट रिफ्रेशिंग थिंग वाज व्हेन मुझे था कि हाँ हेट तो आई गई, पर विमेन like connected with that song and women started singing it along, and बहुत लड़कियों ने अपनी reels बनाई, क्योंकि मोटी is something that every woman has heard at some point in their life. बचपन में बस लोग pull down करने के लिए, hurt करने के लिए, चाहे आप मोटे हो भी नहीं तो भी बोल देते कि तू तो मोटी है या ये है वो है, so I feel like everyone has this trigger word, and जब उससे पावर ही ले ली, छीन ली उससे पावर, मैंने बोल दिया कि हाँ मैं मोटी हूँ, लाइक नाउ यू से वट एवर यू वॉन्ट टू से टू मी, इट वोंट hurt me. So I think that's what triggered a lot of people, but that's what empowered a lot of girls also. Yeah, like you said, social media is a very toxic and negative place, so there would obviously be a lot of hate. So how do you deal with this hate? I think
initially I used to reply to every comment and अब मुझे बहुत cringe आता है अपनी past dark past पे अपने कि why did I do that, क्योंकि उन लोगों का highlight of the day है कि मैंने उनके comment पे reply कर दिया, and you know they must be feeling happy कि oh I dragged her down, I pulled her into my loop and stuff. Yes. So eventually I kind of stopped and I started ignoring, because yeah, that's the best way to deal with it, is to not deal with it at all, to just ignore and do your thing. Because जब मतलब मैं बैठी हूँ कैसे उस पे कमेंट आ रहा है, मेरा एक्सेंट है, मेरा तो एक्सेंट ही नहीं है यार, बट मेरा एक्सेंट है, मतलब किसी को लग रहा है कि मेरा एक्सेंट है, सो इट्स जस्ट देयर इनसिक्योरिटीज दैट दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन यू, या वो मे बी वो चीज़ें maybe they are so harshly critical of their own selves, तो वो चीज़ वो मेरे साथ कर रहे हैं, but you accept the love that you deserve, and I don't accept the hate because I don't deserve it, so yeah, that's how I kind of deal with it. Also, जैसे your page is very versatile. You can see music content, but then there are also vlogs which would probably parody of something, या फिर just something very different. So how do you plan this content कि मैं ये डालूंगी? Do you try to balance it out, or do you just put whatever you want to? Like, what's the process of your deciding factor कि what goes on your page? Sometimes I get really impulsive जब मैं कुछ funny सा या कुछ अच्छा सा shoot कर लेती हूँ, तो इतनी भी planned नहीं होती है, to be honest, but I do try my best to control the outcome and control कि मैं किस तरीके से post कर रही हूँ, but yeah, like it also depends on my mood, because I then remind myself कि it's my page and I shouldn't just be obsessing over the likes and the equation and the calculation, right, and everything behind it. I am allowed to have fun, तो मैं फिर then I do whatever. Mostly it's like a balance of my impulse as well as like कि क्या सही लग रहा है, as well as my knowledge about it. So a lot of your content is value based content, but Instagram also promotes like scrollable reels. So how do you balance between them? Like, how do you find a balance between them? Well, I do feel that providing value is really important, and जैसे scrollable content बनाने में भी मेहनत लगती है. Let's be real, like Yeah. even slow-mo या transition shoot करने में it takes effort. तो बीच में तो ऐसा हो गया था कि I don't want any distractions and I just want to focus on like music. I don't want to post any random stuff or anything that will make people take me less seriously. पर फिर मुझे ये हुआ कि यार मैं भी तो इंसान हूँ, and I also want to have fun, and this pressure is like kind of debilitating and paralyzing me कि मेरा पेज 10 दिन तक inactive जा रहा है, and that's also very bad for your Instagram reach कि आप इतने टाइम तक inactive चले जाओ. तो that's when I felt कि no, I should just chill out, and why am I letting the platform use me? I should use the platform. So yeah, that's how I felt कि okay, I'll post, अगर मैं अच्छा outfit पहना है तो let me take a slow-mo reel, and then then if I want to sing a cover, then let me. But the focus will always be on the skill that I have and the content that I'm providing. What was your family's reaction when all of this was happening, when you were growing your channel? Uske baad these big things like Aurora singing with her, and then SRK, or like what was your family backbone में, were they supporting all time, या फिर issues भी हुए थे? To be honest, my parents are obsessed with my content. अगर एक follower भी ऊपर नीचे होता है, एक भी negative comment आता है, तो उनको मुझसे ज़्यादा बुरा लगता है, and they are tracking down my progress कि ये वाली reel तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं थी, उस वाले में ऐसा किया था, and उनको तो मेरा comedy content, like they are huge fans of my comedy content, because my personality gets reflected in that, and उन्हें मैं बहुत cute लगता है या जो भी है, so they are like huge fans of it. But at the same time, anyone who comes from a middle class family, there's this mindset तो होता ही है कि नहीं, जो typical 9 to 5 है या job वाला route है या academia वाला route है, तो वो ही आपके लिए appropriate है, और उनको वही पता है. So I can't blame them if they think that that's better for me. The criticism keeps coming, but then at the same time, it's not like
कि दे टेल मी टू स्टॉप डूइंग दिस. दे आर वैसा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि नहीं ये मत करो और सिर्फ वही करो, बट याद है कीप टेलिंग मी MBA के बारे में क्या सोचा है तुमने. हर 2 हफ्तों में एक रिमाइंडर मिलता है कि MBA कर लो. आपका कोई सिबलिंग है? No, I'm an only child. That's why it's more, so much more पूरी pressure attention for ही आपके me. ऊपर है, Yeah. कि आज क्या किया, आज फिर से तुमने कोई सक्सेस के लिए कोई काम नहीं किया. No, what are your future plans with your music and content creation both? जैसे आप YouTube पे और Insta पे भी दोनों पे लाइव हो, तो आप फ्यूचर का क्या सोच रहे हो? म्यूज़िक और कंटेंट क्रिएशन दोनों होगे, कोई एक होगा क्या? What are your dreams? This feels like a job interview. आप 5 साल में अपने आपको कहाँ देखते हो? But I don't have any particular future plans as such. I do want to focus more on music, but I also believe that I am a content creator through and through. और जब बड़े बड़े celebrities अब content space में आ रहे हैं, vlogging channel, podcast channel खोल रहे हैं सारे celebrities, तो why would I leave this to do something else full time? I mean, music is my calling, music is my passion, but content creation is also content is just a platform for my music. So I don't think that I'm going to ever stop content creation. In fact, that is something that I really enjoy doing, and it takes a lot of pressure off of my head also, like jo funny vlogs hai wo sab hai, so it's a lot fun also. Okay guys, moving to our most awaited segment, that is rapid fire. Rapid fire. Rapid fire. Okay, so in this segment, we're basically going to be asking you very unscripted, random, questions which are like fiery, drama, everything. Yeah. And you have to answer them as quick as possible, as honestly as possible. Whatever आपके दिमाग में सबसे पहले आया, just say it out loud. Okay, so are you ready? Yeah. So what songs do you prefer, modern songs or vintage song? Modern song. If you could have any one skill or hobby जो अभी तक आपके पास नहीं है, what would that be? I think I started learning drumming, but मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी, तो if given a chance, I would like to continue with that. Okay, so what's your favorite instrument? Guitar. अगर आप सिर्फ 3 चीज़ें अपनी लाइफ में अब रख सकते हो, which will stay with you till the end of the life, 3 possessions only, what would you choose? Unlimited supply of food or maybe French fries. Fries और- before guys. Yeah. Pani, of course. Khana or pina. And third would be a mobile phone for shooting my videos and for calling my friends. Okay, so your favorite genre of music? There's no favorite as such. Like I listen to all genres, जो भी है अभी. R&B, soul, pop, indie pop, a lot of, and recently hip hop. Okay. When you write your originals, do you write the melody first or the lyrics first? It actually depends. पता है कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छी मेलोडी आ जाती है दिमाग में, तो then it's like, oh, you wanna add lyrics to it. But usually I have a thought of a song कि ये song किस चीज़ के बारे में होगा, and then basis of that I compose the melody, क्योंकि melody needs to be emotionally connected with the lyrics, Lyrics, right? yeah. Like एक अगर sad song है तो उसकी उस type की melody होनी चाहिए, तो that's how I go about my writing. Do you have any hidden talent that your audience does not know yet? Sadly ऐसा कुछ है नहीं, but मेरे ही videos पे comments आते रहते हैं कि what a great hidden talent, please keep it hidden. So I'm like, okay. ये I think ये वाला comment वो हर creative person के उस पे लिख देते हैं. अरे this is a repetitive Yeah. comment, like the trollers insult भी original नहीं करते यार. So low effort they are. If you could create a slogan or motto for your life, what would it be? करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ. Great. अगर आप किसी भी world में किसी भी musician, composer किसी के साथ भी collaborate कर सकते हो, तो who would that person be? I've grown up listening to Vishal Shekhar, Salim Suleiman and Shankar Ehsaan Loy. So if I get the chance to work with these 6 people, 6 हो गए कि 1 2 3 4 5 6 7 people, so I would really take this. Okay, now we are going to ask you this and that, and you have to be very quick, okay? So, coffee or tea? Tea. अच्छा, this is a very impromptu one, but since you don't have any sibling, so if you could have, would you have a younger sibling या elder sibling? Younger. Mountain or beaches? Beaches. Cats or dogs? None. What? We need to hear the story behind मैंने this. नहीं, actually मैंने अगर कोई सोचा तो मैं सोचती हूँ both, दोनों हाँ. में choose कैसे करूँ? मैंने none पहली बार सुना है. इसके पीछे ये रीज़न ये है कि
बच्चे तो फिर भी बड़े हो जाते हैं and you can teach them things, but these pets stay the same their entire lives and you can't tell them कि किसी के लिए अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना. अगर आप एक ही चीज़ कर सकते हो अब अपनी लाइफ में, ठीक है, would you prefer to listen to music या to create music? What would you choose? I would choose to listen to music because there are too many musical geniuses out there, and if I couldn't listen to music I would be missing out on so much beauty in the world. And that was it, guys. Thank you so much for watching. This was one of the most unique episodes that we've had. It was really fun to have such an amazing talent house here. Thank you so much for inviting me to Two Sides of a Coin. I hope मैंने लोगों को अपने दोनों sides दिखा दिए. Guys, you can check out Vipasha's channel on Instagram and YouTube as well. Yeah. And the podcast would be out on all the major platforms. Like Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, anywhere that you basically listen to your and podcasts. check out our Instagram as well, which goes by the name of Two Sides of a Coin _podcast. Make sure to like, share, subscribe to Two Sides of a Coin and follow these two cute humans. Okay, and with that we come to the end. Thank you so much for watching. Cheers.